Hello everyone, welcome to Shiomatics. Today in this video, we are going to start with the exercise of discount part, exercise 1.2, sum number 1, 2, 3 and 7. So these are the four sums we are going to complete today. And in the previous video, we saw the formulas related to discount. Okay, so you can have a look at the previous video, and we can also revise here in this video. These were the list of formulae and उसका याद रखने का तरीका हम लोगों ने किया, एक स्टोरी बनाया था and कुछ ऐसे ही memes भी बनाए थे. Okay, so list of formulae में you have first one, sum due is equals to present worth plus true discount. Next, true discount is equals to present worth into n into r upon 100. उसके बाद थर्ड वाला, third is what? Cash value is equals to face value minus BD. Okay. And after the third one, fourth one, BD is equals to FV into N into R upon 100. Fifth, banker's discount is equals to true discount plus banker's gain. And sixth is banker's gain is equals to true discount into N into R upon 100. इसमें से 1, 3 और 5 को याद कैसे रखना है, हमने एक पैटर्न बनाया था, एक तरीका बनाया था. Same goes for 2, 4 and 6. Okay, so let's begin. Let's start. This is sum number 1 of exercise 1.2. Okay, the question is as follows. What is the present worth of a sum of rupees 10,920 due 6 months, hence at 8% per annum simple interest? Okay, so what is the present worth? अभी जितने भी क्वेश्चंस है ना, हम लोगों को क्या करना है, वो 6 फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला इज द बेस्ट सुटेबल फॉर्मूला, ये हम लोगों को चेक करना है. ठीक है, सो इन योर बोर्ड एग्जाम जब आपको आंसर शीट मिल जाएगा, तब लास्ट पेज में आप ये 6 फॉर्मूलाज लिख के रख सकते हो, सो दैट इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए, आप सीधे फॉर्मूलाज देख के रिलेट कर सकते हो कि कैसे सम सॉल्व करना है. So in this case, what is asked? What is the present worth of a sum of rupees 10,920? What is the present worth? What is the present worth means PW. What is PW? PW पूछा है of a sum of rupees 10,920. Sum of rupees 10,920 means sum due 6 months at 8% per annum simple interest. So the period of the bill is 6 months. Okay, and the rate of interest is 8% per annum. Let's start. तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन ऐसे करेंगे. Given sum due SD is equals to what? 10,920. Next, period N is equals to 6 months. लेकिन हम लोगों को N months में नहीं रखना है, हम लोगों को years में convert करना पड़ेगा. So we will be converting it into years, dividing by 12. So 6 upon 12 is equals to 1 upon 2 year. Next, R is equals to 8% per annum, and to find is present worth. So these are the data given to us. अभी हम लोगों को क्या करना है, वो पिछले वाला जो फॉर्मूलाज है उसमें से हम लोगों को बेस्ट सुटेबल फॉर्मूला सिलेक्ट करना है. SD is equals to PW plus TD, first formula. Second formula, TD is equals to PW into N into R upon 100 and so on. Since यहाँ पे सम ड्यू प्रेजेंट वर्थ की बात हो रही है, सो ऑब्वियस है कि फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला में से हम लोगों को यूज करना है. ओके, so since we know that TD is equals to PW into N into R upon 100, हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हम ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे. हमको देखो फाइंड आउट क्या करने के, प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट करने के. व्हाट इज द फॉर्मूला वी नो सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, ये फॉर्मूला है. तो हम लोगों को प्रेजेंट वर्थ पूछा है, एसडी हमको मालूम है. ओके, सो वी नो एसडी, एंड अगर हम टीडी फाइंड आउट करने में कामयाब हो गए तो फिर हम ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके पीडब्ल्यू फाइंड आउट कर सकते. हम लोग क्या करेंगे, ट्रू डिस्काउंट का भी वी नो द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ट्रू डिस्काउंट? ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, जिससे हम लोग पीडब्ल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. Okay, so ये दो फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 का मर्ज है. Okay, we have to
यूज देम टुगेदर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टीडी का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड ये जो वैल्यूज आएगा उसको हम लोग फर्स्ट वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। So let us substitute the values which we know. TD is equals to PW into N into R upon 100. ये फॉर्मूला में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। So TD is equals to PW into N का वैल्यू is 1 upon 2. We know that already. Okay. Into rate of interest is 8 upon 100. तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे और हमको TD का वैल्यू मिलेगा। And the value of TD is equals to 4 into PW upon 100. 2 ones are 2 fours are 8, right? उसके बाद therefore TD is equals to 4PW upon 100 मिलने के बाद क्या करेंगे, SD का फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। SD is equals to PW plus TD, जो वैल्यूज मालूम है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके आंसर मिल जाएगा। What is our aim? We have to find present worth. So what is the value of SD given in the question? It is 10,920. प्रेजेंट वर्थ तो पूछा है तो उसको हम पीडब्ल्यू का पीडब्ल्यू ही रखेंगे एंड ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू हमको यहाँ पे मिला है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रू डिस्काउंट? 4 into present worth upon 100. Okay, now you have to solve this equation and आपको पीडब्ल्यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम, ये 100 into पीडब्ल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 पीडब्ल्यू प्लस 4 पीडब्ल्यू अपॉन 100, फिर वो 100 को इधर भेज दो, यहाँ पे 100 PW प्लस 4 PW 104 PW हो जाएगा, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आपको PW मिल जाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेप 10,920 इज इक्वल्स टू 100 PW प्लस 4 PW अपॉन 100 क्रॉस मल्टीप्लाई। अगेन therefore 10,920 is equals to 104 PW upon 100 क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको 100 उस तरफ भेजना है which is equals to 104 PW and then therefore PW finally 104 नीचे डिवाइड होने के बाद कैलकुलेट करके चेक करो, आपको आंसर मिल जाएगा 10,500, ठीक है। सो आफ्टर दिस आप कैलकुलेट करके देख लेना इधर इसके बाद। सो PW कितना आएगा, ₹10,500 will be the answer and ये होने के बाद finally the grand finale answer present worth is ₹10,500. So this becomes sum number 1. Is that clear? Okay, next. Next is once again list of formula सामने है, इनमें से ही हम लोगों को यूज करने का है depending upon the data given to us. Now let's move on to question number 2. Now the next question is, what is sum due of rupees 8,000? What is sum due? What is sum due means SD पूछा है of rupees 8,000. तो 8,000 अभी का वैल्यू है, बाद में कितना होने वाला है, which means 8,000 अभी का वैल्यू मतलब PW। तो प्रेजेंट वर्थ हमको दिया हुआ है, ड्यू 4 months, ऑब्वियसली इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5%। सो द सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। गिवन में क्या क्या लिखेंगे हम लोग, प्रेजेंट वर्थ इज ₹8,000, नेक्स्ट n is equals to 4 months which is 4 upon 12, that is 1 upon 3 year, R is equals to 12.5% to find sum due, SD, okay, and formula, relevant formula same, TD is equals to PW into N into R upon 100। सब्स्टिट्यूट करते हैं जो वैल्यूज हमको मालूम है, PW हमको मालूम है, N मालूम है, R मालूम है, okay, and substitute the values, you get TD। So upon calculating we get rupees 333.33, that is the value of true discount। So once ये हो जाएगा फिर हम लोग SD का फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। SD is equals to present worth plus true discount। हम लोगों ने याद कैसे रखा था, सुधु ने प्यार वफा प्लस ईयर दी, sum due is equals to present worth plus true discount। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, हमको आंसर मिल जाएगा SD का 8,000 plus 333.33 is equals to rupees 8,333.33 and the grand finale answer। Therefore, sum due is rupees 8,333.33। Is that clear? That is sum number 2। तो क्वेश्चन सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फॉर्मूलाज में सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट करना है। That was sum number 2। Next is sum number 3। True discount on the sum due 8 months hence at 12% per annum is rupees 560। हम क्या करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग
ये जो पार्ट है ना ड्यू 8 months एंड 12% पर एनम, इसको थोड़े टाइम के लिए नहीं पढ़ते हैं. कैसे दिए? ट्रू डिस्काउंट इज ₹560. सो ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू 560 है. टीडी यहाँ पे दिया हुआ है. ड्यू 8 months, सो पीरियड भी हमको मालूम है 8 months ईयर्स में कन्वर्ट करना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%. हमको दोनों चीज पूछा है, फाइंड द सम ड्यू एंड आल्सो फाइंड द प्रेजेंट वन. सो ये सम में भी ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला ही यूज होना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द फर्स्ट गिवन थिंग? ट्रू डिस्काउंट इज ₹560. सो 560 रुपीज ट्रू डिस्काउंट है. नेक्स्ट पीरियड एंड कितना है? 8 months, which is to be converted into years. 8 upon 12 is equals to 2 upon 3 years, and rate of interest is 12% per annum. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? फॉर्मूला फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला ही यूज करना है. व्हाट इज टू फाइंड प्रेजेंट वर्थ एंड सम ड्यू. सिंस व्हाट इज द फॉर्मूला वी नो? ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू PW into N into R upon 100. TD is equals to present worth. PW into N into R upon 100. सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को जो जो मालूम है. ट्रू डिस्काउंट हमको पता है 560. प्रेजेंट वर्थ पता है, एंड प्रेजेंट वर्थ नहीं पता है क्योंकि हमको फाइंड आउट करने का है. एन का वैल्यू इज 8 upon 12, R is 12 upon 100. So 12 gets cancelled. Therefore 560 is equals to PW into 8 upon 100. So what we got? Therefore PW is equals to 560 into 100 upon 8. क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड हमको प्रेजेंट वर्थ का वैल्यू मिल जाएगा, which is equals to ₹7,000. सो प्रेजेंट वर्थ मिल गया ये फॉर्मूला से. ट्रू डिस्काउंट ऑलरेडी पता है. अब बचा क्या फाइंड आउट करने को? सम ड्यू. सो ऑब्वियसली अभी सम ड्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? फॉर्मूला नंबर 1, which is SD is equals to PW plus TD. सो जो वैल्यूज मालूम है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. 7,000 plus 560 प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू है रिस्पेक्टिवली. सम ड्यू का वैल्यू मिल जाएगा, which is equals to ₹7,560, and the grand finale answer. Therefore present worth is ₹7,000 and sum due is ₹7,560. ठीक है, सो अभी तक जितने भी अभी तक सम्स किए डिस्काउंट के ऊपर, फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला के ऊपर ही सम्स थे. So this was question number 1, 2 and 3, and finally we are going to complete question number 7. Sum number 7 is as follows. True discount on a bill is ₹2,200 and banker's discount is ₹2,310. If the bill is due 10 months, hence find the rate of interest. So ये वाले सम में बैंकर्स डिस्काउंट दिया हुआ है, BD आया है. TD तो है ही, साथ में BD भी आया हुआ है, एंड हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है. तो जो हमारा फॉर्मूला का जो लिस्ट है उसमें ये चेक करने का कि कौन से ऐसे फॉर्मूलाज है जिसमें BD और TD है. फर्स्ट फॉर्मूला तो नहीं, सेकेंड फॉर्मूला नहीं, थर्ड फॉर्मूला नहीं, फोर्थ फॉर्मूला नहीं, फिफ्थ एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें BD एंड TD दोनों साथ में है. So what we can do is BD TD सब्स्टिट्यूट करके BG मिल जाएगा, एंड यूजिंग फॉर्मूला नंबर 6 BG मिल जाएगा. TD ऑलरेडी मालूम है, NB मालूम है, 100 मालूम है, R का वैल्यू मिल जाएगा. That is how the core idea is. Okay, fifth and sixth sum का मर्ज कर दे, फिफ्थ एंड सिक्स फॉर्मूला को मर्ज करें. Okay, so seventh sum का solution is as follows. True discount TD is ₹2,200. Banker's discount BD is 2,310. Period N is equals to 10 months. So convert it into years, 10 upon 12, which is 5 by 6 years. So as I said, fifth और sixth formula का combination है. तो fifth formula use करेंगे. BD is equals to TD plus BG. Values को substitute करो, आपको BG मिल जाएगा, which is ₹110. So एक बार BG मिल जाएगा, फिर सिक्स्थ वाला फॉर्मूला यूज कर दो. BG is equals to TD into N into R upon 100. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, एंड R के अलावा बाकी सब मालूम है आपको. सब्स्टिट्यूट, सॉल्व, कैंसिलेशंस जो भी है करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको R का वैल्यू मिल जाएगा, which is 6%, and hence the grand finale answer. Therefore the rate of interest is 6% per annum. Clear? So with this, today we are done with 4 sums of exercise 1.2 discount wala. Okay, so thank you so much. Next sums in the later videos. Till then, love mathematics, follow Shiomatics,
And always remember, every problem has a solution. Thank you.